Hi, hello everyone. Welcome back to the channel Plant Sciences by Janardhan Reddy. In today's class, we started a new series, microbiology series, जिसमें हम सारे कवर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जो जो कंटेंट्स कवर करनी है, जो प्लांट साइंसेस स्ट्रीम में जो ज़रूरत है, जो एग्जाम के लिए आईसीआर जेआरएफ एंड आईसीआर नेट के लिए, इसमें हम डिटेली देखते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट जो भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है. ठीक है, विल स्टार्ट द माइक्रोबायोलॉजी सीरीज विद द हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. We'll start with the history of the microbiology, the entire idea of microbiology, किस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, किस कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या थियरीज आए, साइंटिस्ट किस किस ने क्या क्या डिस्कवर किया, एंड हाउ ऑल द स्टोरी स्टार्टेड. ठीक है, स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. History of the microbiology started with the invention of microscope by the Anton von Leeuwenhoek. By invention of microscope by the Dutch merchant Anton von Leeuwenhoek in the 17th century. Invention of microscope by Anton von Leeuwenhoek in the 17th century. ठीक. Yes. ठीक. ही डिस्क्राइब्ड उसके बाद जो इन्वेंशन किया माइक्रोस्कोप को, जो इन्वेंशन किया लिवेनहुक ने, उसके बाद थ्रू इस माइक्रोस्कोप ही फाउंड द माइक्रोबियल वर्ल्ड. ही डिस्कवर्ड ए माइक्रोबियल वर्ल्ड. माइक्रोबियल वर्ल्ड मतलब उससे पहले कोई माइक्रोबियल वर्ल्ड को नहीं जानता था. उसके बाद एंटन वॉन लिवेनहुक जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, थ्रू माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर्ड ए माइक्रोबियल वर्ल्ड. He called the microbial world as animalcules or little animals. Animalcules or little animalcules or little animals. He was the first person, as he invented the microscope इन्होंने invent किया. He was the first person to study about protozoa, describe about protozoa. He was the first person to describe about fungi. He was the first person to describe about algae. He was the first person to describe about bacteria, and he called them as animalcules. These are all the things first described by Leeuwenhoek. Not only these microbes, after his invention of microscope, he was the first to describe spermatozoa, sperm. Sperm was first described by Anton von Leeuwenhoek. Not only sperm, RBC, red blood cell. Red blood cell was also first time described by Anton von Leeuwenhoek. Free living protozoa as well as parasitic protozoa, first time described by Anton von Leeuwenhoek. Bacteria, first time described by Anton von Leeuwenhoek. After all his discoveries, he used to write all his observations, जो भी इन्होंने observe किया. For the first time protozoa ने observe किया, discover किया, describe किया, fungi, bacteria, algae, everything. He used to communicate all his observations and findings to British Royal Society through letters. Through a series of letters, he used to communicate all his observations to British Royal Society. Leeuwenhoek's discovery of animal cubes and other microbes revealed that there is a presence of heritO unknown world. HeritO unknown world मतलब there is a microbial world, hidden microbial world जो normally नहीं दिखता naked eye से. You should need a microscope. Through microscope के अंदर microbial world you can see. ठीक है, दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ एंटन वॉन लीवेनहुक. एंड माइक्रोबियल वर्ल्ड, माइक्रोब्स को ये क्या बुलाता था? एनिमल क्यूल्स. ठीक है, ही यूज्ड टू कॉल देम एज एनिमल क्यूल्स. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ये तो कंफर्म हो गया कि थ्रू माइक्रोस्कोप माइक्रोबियल वर्ल्ड इज देयर. उसमें माइक्रोब्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर देयर, वेरी माइक्रोस्कोपिक, विच यू कांट सी विद द आइज, यू कैन सी ओनली विद द माइक्रोस्कोप. ये तो कंफर्म हो गया. उसके बाद द मेन सब्जेक्ट है फर्दर स्टडी के लिए ऑरिजिन ऑफ माइक्रोब्स. मतलब ऑरिजिन कहाँ से हुई है, माइक्रोब्स कहाँ से ऑरिजिन हुई है. मतलब कभी हम देखते थे, ये पहले देखता था कि मतलब फूड खराब हो जाता था, फूड के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से, फंगल ग्रोथ की वजह से ब्रेड खराब हो जाता था. इन्होंने ये इसमें ऑरिजिन ऑफ माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स ऑरिजिन, साइंटिस्ट ये बिलीव किया था, कुछ साइंटिस्ट बिलीव किया कि माइक्रोब्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मटेरियल. नॉन लिविंग मटेरियल से ऑरिजिन हुआ, नॉन लिविंग मटेरियल से बना, नॉन लिविंग मटेरियल से माइक्रोब्स बना. ठीक है, ऑरिजिन ऑफ माइक्रोब्स क्या सोचा था कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, नॉन लिविंग मटेरियल से बना होगा. कुछ कुछ साइंटिस्ट बिलीव किया कि लिविंग मटेरियल से बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना. Microbes are formed from living organisms. Group of scientists believe microbes are formed from non-living organisms, non-living material. A group of scientists are believed. ठीक है, and the theory which supports that microbes are formed from the microbes are developed from the non-living material. That theory is known as spontaneous generation theory.
स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुआ इस living microbes are formed from the living organisms, living entities which is present in air। एयर मतलब इन्होंने ये बोला स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में जितने भी साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि नॉन लिविंग मटेरियल से, हवा की वजह से एंड एयर की वजह से, जो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है एंड ऑल, नॉन लिविंग मटेरियल से ही माइक्रोब्स बना, ये जो थिंकिंग है बाकी ये गलत है। एंड उसकी explanation living organisms से ही आया। microbes are originated from living organisms। This was supported by preformation theory। preformation theory preformation theory प्रीफॉर्मेशन थियरी किसने दिया? प्रीफॉर्मेशन थियरी वाज गिवन बाय स्वॉमरडैम एंड मार्सेलो माल्फिजी। स्वॉमरडैम एंड मार्सेलो माल्फिजी। उसके बाद इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय एंटन वॉन लीवेनहुक। एंटन वॉन लीवेनहुक आल्सो सपोर्टेड दैट microbes are originated from living organisms। ठीक है, that's how there is a debate that microbes are originated from non-living material या living material। non-living material वाली सपोर्ट वाली थियरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी। लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना ये सपोर्ट करने वाली थियरी है प्रीफॉर्मेशन थियरी। प्रीफॉर्मेशन थियरी किसने दिया? स्वामरडैम एंड मार्सेलो मार्फिजी। प्रीफॉर्मेशन थियरी किसने दिया? स्वामरडैम एंड मार्सेलो माल्फिजी। एंड लेटर ये प्रीफॉर्मेशन थियरी को सपोर्ट किसने दिया? द जियांट डिस्कवरर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड एंटन वॉन लीवेनहुक भी प्रीफॉर्मेशन थ्योरी को सपोर्ट दिया ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ। अब देखते देख स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या बोलते हैं। द बिलीफ, इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्टेनियसली लिविंग बीइंग्स फॉर्म होता है नॉन लिविंग मटेरियल से। नॉन लिविंग मटेरियल से स्पॉन्टेनियसली लिविंग मैटर बनता है, दैट ही माइक्रोब। दिस theory is also known as doctrine of spontaneous generation। doctrine of spontaneous जनरेशन। बट ये जो भी थ्योरी है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल थ्योरी। इट्स ओनली अ बिलीफ, इट डजंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। बिकॉज ऑफ इट डजंट हैव एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अलॉन्ग विद दैट इसको डिस्प्रूव करने के लिए भी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उस टाइम। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम spontaneous generation theory for the first time disproved by Francisco Redi। Francisco Redi was the first person, for the first time he disproved spontaneous generation theory with his experiments। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने पुट्रीफाइंग मीट लिया। पुट्रीफाइंग मीट मतलब क्या है? डिकेइंग मीट। डिकेइंग मीट डिकेइंग मीट मीट मतलब क्या? डेड में डीट मीट मतलब नॉन लिविंग मैटर है ये मीट। डिकेइंग मीट नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, राइट। लोग ये सोच रहे थे डीकेइंग मीट जो नॉन लिविंग मैटर है, जो डेथ होने के बाद उसमें जो लाइफ नहीं है, उसके ऊपर जो मैगोट्स आ रहे हैं, जो मीट के ऊपर डीकेइंग मीट के ऊपर जो मैगोट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैगोट्स मतलब क्या? मैगोट्स आर लार्वा ऑफ फ्लाइज। इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस्को रेडी ने, पहले जब ये बिलीफ होता था भाई पुट्रीफाइंग मीट में तो कोई लिविंग है ही नहीं, लाइफ है ही नहीं, उसके ऊपर जो मैगोट्स आ रहे हैं इसका मतलब नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग आ रहा है, ये बिलीफ था उससे पहले। फ्रांसिस्को रेडी ये बताया भाई उसमें जो मैगोट्स आ रहा है वो लिविंग ही है। बाकी वो पता कैसे आ रहे हैं? वो हवा के अंदर जो फ्लाइस जब आके खाने के ऊपर या मीट के ऊपर बैठता है एंड उसके ऊपर एग्स ले करता है एंड वो एग्स जर्मिनेट होके एग से लार्वा बन रहा है। इट इज मतलब maggots are maggots are maggots are the larval stages of flies। larval stages of the flies, maggots are the larval stages of flies। flies आगे एग ले करेगा, एग से लार्वा, लार्वा से अगेन प्यूपा, प्यूपा से फ्लाइज, ठीक है। दिस इज द साइकिल। एंड इसीलिए जो लिविंग से लिविंग बन रहा है, बाकी पुट्रीफाइंग मीट से कोई डेड ऑर्गेनिज्म से कोई माइक्रोब्स और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी नहीं बनता। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी नॉन लिविंग मैटर से नहीं बनता। मैगोट जो भी बन रहा है वो भी नॉन लिविंग से नहीं बन रहा है, वो एग्स ऑफ द फ्लाइज एंड फ्लाइज की जो एग्स से लार्वा बन रहा है एंड लार्वा वो फ्लाइज का लार्वा है, ठीक है। दैट्स हाउ इन्होंने, फ्रांसिस्को रेडी वाज द scientist to disprove the फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी गलत है। फर्स्ट टाइम किसने प्रूव किया? फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एसजी थ्योरी। उसके बाद इनकी सपोर्ट में एक और साइंटिस्ट है स्पेलेंजेनी। स्पेलेंजेनी विथ प्रॉपर एविडेंस इन्होंने प्रूव किया, विथ प्रॉपर एविडेंस किया।
प्रॉपर बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एविडेंस, इन्होंने प्रॉपर प्रूफ दिया ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डज नॉट डेवलप स्पॉन्टेनियसली, कभी भी स्पॉन्टेनियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग मटेरियल से डेवलप नहीं होता। ठीक है, इन्होंने प्रूव ऐसे किया, इन्होंने एक बीफ को बॉईल किया, बीफ को बॉईल किया, बॉइल्ड बॉइल्ड बीफ ब्रोथ को रखा, 1 आवर इंक्यूबेशन में रखा, फ्लास्क में, एक फ्लास्क में बॉइल्ड बीफ ब्रोथ को 1 आवर इंक्यूबेशन में रखा। इन्होंने बीफ को जब बॉईल किया, उसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्पोर्स है, स्पोर स्टेजेस है या कुछ भी है, वो सारे डेथ हो जाते हैं। हीटिंग से क्या होता है, बॉइलिंग से स्टेरिलिटी आ जाता है। ठीक है, स्टेरिलिटी मतलब क्या, उसमें सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डेथ हो जाते हैं, असेप्टिक कंडीशंस बन जाता है, असेप्टिक कंडीशन विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बीफ बॉइल्ड हो गया, असेप्टिक कंडीशंस इन्होंने क्रिएट करके, इन्होंने ये बोला इसको फ्लास्क में सील कर दिया, फ्लास्क में सील कर दिया, इन्होंने फ्लास्क में सील कर दिया, इन्होंने सील करके इंक्यूबेशन में रखा। इंक्यूबेशन में रखने के बाद, इंक्यूबेशन में रखने के बाद कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं मिला उसमें, इंक्यूबेशन में रखने के बाद नो माइक्रोब अपीयर्ड फॉलोइंग इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन में रखने के बाद भी इन्होंने ऐसे प्रूव कर दिया भाई ये नॉन लिविंग मटेरियल है, बॉइल्ड बीफ ब्रोथ है। आप बोल रहे हो कि मीट के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मैंने बॉईल करके रखा, बॉईल करके फ्लास्क में रखा, सील करके इंक्यूबेशन में रखा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ नहीं पाया उसमें से। द रीजन ये है कि नॉन लिविंग से लिविंग कभी नहीं बनता, इन्होंने प्रूव कर दिया। Spallanzani were the first to provide proper evidence for the for disproving the spontaneous generation theory. फर्स्ट, नॉर्मली अगर क्वेश्चन में पूछा तो फर्स्ट पर्सन टू डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, इट इज फ्रांसिस्को रेडी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड प्रॉपर एविडेंस स्पेलेंजेनी। उसके बाद फ्रांसिस्को रेडी स्पेलेंजेनी ने ट्राई करके डिस्प्रूव कर दिया, दोनों दोनों के तरीका में। उसके बाद भी जॉन नीदम ये बोल रहे थे, स्पेलेंजेनी एंड नीदम में ना, स्पेलेंजेनी जो बीफ ब्रोथ को बॉईल किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने सील कर दिया, सील करके ये बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हुआ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हुआ, एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी गलत है, क्योंकि उसमें स्पॉन्टेनियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बना नॉन लिविंग मटेरियल से, डेड ब्रोथ से। फिर जॉन नीदम बोलता है सब कुछ सही किया स्पेलेंजनी ने, बाकी एयर नहीं था ना, एयर जरूरी था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए। इन्होंने फिर भी ये बोला कि नीदम नीदम ये बोला कि फिर भी बोला कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन तेरी गलत नहीं है, तेरी एक्सपेरिमेंट में एयर नहीं था इसीलिए नहीं आ पाया, नहीं तो उस केस में भी जनरेट हो जाता था। दैट वाज द आर्ग्यूमेंट पुट पुटेड बाय जॉन नीदम। ठीक है, दैट वाज द आर्गुमेंट दैट वाज गिवन बाय जॉन नीदम। उसके बाद 60-70 इयर्स डिबेट चलता रहा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी करेक्ट है, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी करेक्ट है। उसके बाद इसकी जॉन नीदम की जो आर्गुमेंट है, इसको भी प्रूव कर दिया, चलो तेरे को एयर ही तो चाहिए, एयर नहीं है इसीलिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो पाया। दैट वाज द आर्गुमेंट, राइट। इस आर्गुमेंट को दो साइंटिस्ट इंडिविजुअली डिस्प्रूव किया, दो एक्सपेरिमेंट्स डिस्प्रूव किया। वन इज डन बाय फ्रांज स्क्लूल्स, सेकंड वन इज डन बाय स्क्रोडर एंड वांडा। इन दोनों ने ना सेम एक्सपेरिमेंट में बीफ ब्रोथ को बीफ ब्रोथ के अंदर, बीफ ब्रोथ जो है, बीफ बॉइल्ड बीफ ब्रोथ बॉइल्ड बीफ ब्रोथ बॉइल्ड बीफ ब्रोथ के अंदर एयर भेजा इन्होंने, स्कूल एयर भेजा, बाकी दैट एयर पहले पास हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन से, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। बॉइल्ड बीफ ब्रोथ के अंदर एयर इन्होंने भेजा, एयर ही तो जरूरी है, एयर भेजा, बाकी वो एयर उससे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशंस के थ्रू पास होके वो पहुंचा है ब्रोथ के पास। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में क्यों भेजा इन्होंने, ताकि एयर को स्टेराइल करने के लिए, एयर के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पोर्स वगैरह कुछ हो तो उसमें डेड हो जाता है, ताकि ओनली सिर्फ और सिर्फ प्योर एयर, फ्रेश एयर पहुंच जाता है, ताकि इन्फेस्टेशन नहीं होगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्होंने भेजा है, एंड भेजने के बाद भी प्रूव कर दिया, मैंने एयर भेजा बाय पासिंग इट थ्रू द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, उसके बाद भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हुआ इंक्यूबेशन में रखने के बाद भी। दैट्स हाउ फ्रांस स्कूल्स डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। नीदम की जो डाउट है वो भी क्लियर कर दिया। सेम नीदम की डाउट स्क्रोडर एंड डस्ट ने भी क्लियर कर दिया। बाकी इन्होंने जैसे स्ट्रॉन्ग एयर भेजनी है, एयर के अंदर स्पोर्ट्स को नहीं भेजनी है, ऐसे इन्होंने एसिड सॉल्यूशन के थ्रू भेजा। बाकी स्क्रोडर एंड डस्ट क्या किया, कॉटन प्लगिंग किया। स्क्रोडर एंड डस्ट सेम बॉइल्ड बीफ ब्रोथ को जो फ्लास्क में रखा, फ्लास्क को
कॉटन कॉटन प्लग कॉटन प्लगिंग किया कॉटन प्लगिंग किया कॉटन प्लगिंग मतलब कॉटन से स्टफिंग से प्लग क्लोज करने करके एयर पास किया। एयर पास करने से क्या होता है, कॉटन के थ्रू जब एयर पास हो जाता है, उसके अंदर जितने भी स्पोर्स है, माइक्रोब्स है, वो सारे फंस जाते हैं कॉटन के अंदर, एंड प्योर एयर जाता है ब्रोथ के पास, प्योर एयर जाता है ब्रोथ के पास। इसमें इन्होंने क्या किया, फिल्टर किया, माइक्रोब नहीं पहुंच पाता बॉइल्ड ब्रोथ तक, एंड कोई भी कुछ भी नहीं पहुंच पाता। एंड ये नॉन लिविंग मटेरियल है, इन इंक्यूबेशन में रखा, प्योर एयर जा रहा है, तो कोई भी इन्फेस्टेशन नहीं हुआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इसके अंदर नहीं आया बॉइल्ड ब्रोथ में। इन्होंने प्रूव कर दिया भाई, तेरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी डिस्प्रूव हो गया, क्योंकि एयर पास करने के बाद भी तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो रहा है ब्रोथ में। इन्होंने एसिड सॉल्यूशंस यूज किया, इन्होंने कॉटन प्लग यूज किया एयर को स्टेरिलाइज करने के लिए। यहाँ एयर में स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, स्पोर्ट्स वगैरह किल हो रहा है थ्रू एयर पास, जब स्ट्रॉन्ग एयर सॉल्यूशन से पास होता है। ये कॉटन प्लग रखा तो फिर माइक्रोब सारे ट्रैप हो जाता है। दिस हाउ ये जो टेक्निक्स यूज करके जॉन नीदम की जो आर्ग्यूमेंट है, इसको भी क्लियर करके स्पॉन्टेनियस जनरेशन को थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। इसके बाद भी इतना क्लियरली डिस्प्रूव किया स्कूल्स ने, क्रोडर एंड वांडस ने, इसके बाद भी आर्किमिड पोच आर्किमिड पोच पब्लिश्ड एन एक्सटेंसिव रिपोर्ट फेवरिंग आर्किमिड पोच, एक साइंटिस्ट है, एंड इन्होंने एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट बनाया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी सही है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी सही है, वो गलत नहीं है, वही सही है। उसके बाद लुईस पास्चर आया सीन में, लुईस पास्चर डिस्प्रूव किया। Louis Pasteur is a French scientist performed various experiments to disprove the spontaneous generation theory. इन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने में, ठीक है। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, नैरो गूसनेक, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, नैरो गूसनेक नैरो गूसनेक एक्सपेरिमेंट नैरो गूसनेक नैरो गूसनेक एक्सपेरिमेंट। क्या है, इन्होंने फ्लास्क लिया विथ लॉन्ग नैरो गूसनेक लॉन्ग नैरो गूसनेक विथ अनट्रीटेड अनफिल्टर्ड एयर कैन पास आउट, ठीक है। जिसमें इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने ना एसिड सॉल्यूशंस की यूज किया, इन्होंने ना कॉटन प्लग को यूज किया, कोई बात नहीं, इन्होंने नैरो ट्यूब लिया, नैरो ट्यूब कनेक्शन दिया, नैरो गूसनेक एंड बीफ ब्रोथ यहाँ है, ठीक है, बीफ ब्रोथ यहाँ है, एंड यहाँ इन्होंने अनफिल्टर्ड एयर, मतलब अनफिल्टर्ड एयर, अनट्रीटेड एयर, ना एसिड से ट्रीट किया, ना कॉटन प्लग लगाया, सीधा यहाँ भेजा। भेजने के बाद ये जो गूसनेक है ना, गूसनेक की तरह है ना, उसकी वजह से क्या होता है ना, माइक्रोब्स यहाँ फंस जाता है, यहाँ फंस जाता है, यहाँ फंस जाता है, यहाँ फंस जाता है, यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। उसके बाद क्या हुआ, इंक्यूबेशन में प्रॉपर फ्रेश एयर पहुंच जाता है नीचे तक, एंड उसमें भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं दिखता। अनट्रीटेड अनफिल्टर्ड एयर कुड पास इन और आउट, but germs settled in the gooseneck, it will not reach the broth, germs settled in the gooseneck as germ free air। उसकी वजह से क्या हुआ, जर्म फ्री एयर पहुंच गया फ्लास्क में, एंड नो जर्म फ्री एयर गया, मतलब उसमें जितने भी जर्म्स है, माइक्रोबियल पार्ट्स है, रैमनेंट्स है, वो सारे घुसनेक में फंस गया। ब्रोथ तक तो फ्रेश एयर गया, फ्रेश एयर जाने के बाद वहाँ कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं दिखा, नो माइक्रोब्स अपियर्ड इन द इन्फ्यूजन मतलब जो ब्रोथ है, बीफ ब्रोथ बीफ ब्रोथ या बॉइल्ड जो इन्फ्यूजन, मतलब हॉट इन्फ्यूजन जो बॉइल्ड करके जो रखा, डेड वाली। दैट्स हाउ इन्होंने डिस्प्रूव किया। इसमें भी इन्होंने यही एक्सप्लेन किया। लुइस पैस्चर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू द डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए गूसनेक एक ओपनिंग रखा इन्होंने, विद उसको ना इन्होंने कॉटन प्लग यूज किया, ना इन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशंस के थ्रू एयर पास किया, इन्होंने सीधा अनफिल्टर्ड एयर पास करने के लिए किया। बाकी गूसनेक की वजह से क्या हुआ, गूसनेक की वजह से क्या हुआ उस गूसनेक की वजह से इधर उधर वो माइक्रोब्स वहीं गूसनेक में ही ट्रैप हो जाता है, एंड फ्रेश एयर पहुंच जाता है ब्रोथ के पास, एंड वहाँ कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं मिला। ठीक है, कोई भी माइक्रोबियल नहीं ग्रोथ नहीं मिला। दैट्स हाउ इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया। इन्होंने एक और चीज़ कहा भाई, माइक्रोब्स पहले जो स्क्रोडर एंड डस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नीचे नहीं आया,
पता है क्यों नहीं आया? एयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रोब्स होता है, वो कॉटन में फंस जाता है, इसीलिए नहीं आया। अब तो समझो एयर के अंदर जो माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स है वो कॉटन में फंस गया था, एंड उसमें कॉटन में माइक्रोब्स मिला इनको। ही आल्सो शोड बाय फर्दर स्टडीज यूज्ड कॉटन फिल्टर्स, जो एक्सपेरिमेंट में यूज्ड कॉटन फिल्टर्स है उसमें इन्होंने एग्जामिन किया यूज्ड कॉटन फिल्टर्स को, मतलब एक्सपेरिमेंट्स में जो यूज किया कॉटन फिल्टर्स, कॉटन प्लग्स को, उन्होंने उसको एग्जामिन करके प्रूव कर दिया उसमें माइक्रोब्स है। ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप इन्होंने स्टडी करके रिवील किया प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? हवा के अंदर कुछ माइक्रोबियल्स की जो रैमनेंट्स है, सीड्स है और स्पोर्ट्स है, जो ट्रैप हो गया एंड वो जनरेट हो गया कॉटन में, माइक्रोब्स हवा में प्रेजेंट है, एंड वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से लिविंग ग्रोथ होता है, कोई भी सिर्फ हवा की वजह से नहीं होता। एंड इन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है। गूसनेक एक्सपेरिमेंट किसने दिया? द मेन क्वेश्चन इज गूसनेक एक्सपेरिमेंट दे के प्रॉपरली स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किसने किया प्रॉपरली? लास्ट में किसने किया? लुइस पास्चर ने किया। लुइस पास्चर एंड द डिबेट। लुइस पास्चर लास्ट में आया, इन्होंने प्रॉपरली गूसनेक एक्सपेरिमेंट कर दिया। इसके बाद कोई बोलने वाले नहीं है, इसके बाद कोई बोलने वाले नहीं है, सारे डिबेट्स बंद हो गए, एंड लुइस पास्चर सक्सेसफुली डिस्प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। ठीक है। एंड जॉन टिंडल क्या किया? प्रूव दैट डस्ट कैरीड द जर्म्स। जॉन टिंडल वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड दैट डस्ट is the carrier of the germs. Dust is the carrier of the germs. Germs present in the dust. Germs present in the dust. And dust जब आएगा तभी इन्फेस्टेशन हो रहा है, तभी इन्फेक्शन हो रहा है, एंड माइक्रोब्स पास हो रहा है। इसका मतलब माइक्रोब की कैरियर कौन है? डस्ट है। जब भी इन्होंने स्टेराइल इन्फ्यूजन्स मतलब क्या? बॉइल्ड बीफ ब्रोथ जब इन्होंने फ्रेश एयर वाली चांबर में रखा, मतलब डस्ट फ्री चांबर में रखा बॉइल्ड बीफ ब्रोथ को, ये रिमेन स्टेराइल, दिस विल रिमेन स्टेराइल एंड असेप्टिक। इसका मतलब बॉइल्ड बीफ ब्रोथ को, स्टेराइल बीफ ब्रोथ को जब हेल्दी एयर में, डस्ट फ्री एयर में रखते हैं, हेल्दी कंडीशंस में रखते हैं, तो उसमें स्पॉइलेज नहीं होगा। स्पॉइलेज उसी की वजह से होता है जहाँ एयर में डस्ट होगा, एंड एयर में डस्ट इज द कैरियर ऑफ जर्म्स। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डस्ट इज द कैरियर ऑफ जर्म्स। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जॉन टिंडल। ही आल्सो एक्सपेरिमेंटेड दैट बैक्टीरिया। जॉन टिंडल ने एक और एक्सपेरिमेंटेशन दिया, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दिया, एक स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दिया, दैट इज टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुआ? क्योंकि ड्यूरिंग इज एक्सपेरिमेंटेशन है ना, टिंडल ने ये बताया बैक्टीरिया के अंदर टू टू फेसेस होता है। वो एक होता है थर्मोलायबल फेस, एक होता है थर्मो रेसिस्टेंट फेस। थर्मोलायबल मतलब वो 5 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट हीट करो वो खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया टू फेजेस होता है, मतलब एक थर्मोलायबल फेज होता है, एक थर्मो रेसिस्टेंट फेज होता है। स्पोर्स हो गया, ये सब थर्मो रेसिस्टेंट के अंदर आता है। नॉर्मल बैक्टीरिया थर्मोलायबल, नॉर्मल बैक्टीरियल स्टेज में है, थर्मोलायबल स्टेज में है, तो वो डेथ हो जाएगा 5 मिनट्स हीटिंग के लिए। 5 मिनट्स हीटिंग में भी, बॉइलिंग में ही डेथ हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो थर्मोलायबल स्टेज है। ठीक है। टू फेजेस, वन इज थर्मोलायबल, एंड जो दूसरी फेज है जो थर्मो रेसिस्टेंट है, वो लाइक बैक्टीरियल स्पोर्स है। थर्मो रेसिस्टेंट फेज स्पोर स्टेज होता है ना, स्पोर स्टेज इज अ डोरमेंट फेज डोरमेंट फेज डोरमेंट फेज प्रोटेक्टिव फेज है ये थर्मो रेसिस्टेंट है। थर्मो रेसिस्टेंट मतलब टेम्परेचर रेसिस्टेंट। इसको कितने भी हीट करो, कितने घंटों में भी करो, इसको 5 घंटे, 5 मिनट नहीं, 5.5 आवर तक भी हीट करो, फिर भी डेथ नहीं होता इसकी, क्योंकि स्पोर इज ए डोरमेंट स्ट्रक्चर, थर्मो रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है ये, टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, एंड ये इसकी डेथ नहीं होता। दैट्स हाउ इन्होंने एक चीज नोटिस किया, भाई बैक्टीरिया के अंदर दो स्टेजेस है। तो इसका मतलब है बैक्टीरियल स्पोर को डायरेक्टली खत्म करना मुश्किल है, पहले उसको बैक्टीरियल स्पोर को ना फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करो, वो स्पोर जर्मिनेट होके बैक्टीरिया फेज में आ जाएगा, तब मारो। मतलब स्पोर की स्टेज में मार नहीं सकता, स्पोर की स्टेज में तो मार नहीं सकता। इन्होंने क्या किया, स्पोर को थोड़ा बहुत टाइम दिया ताकि वो स्पोर जर्मिनेट होगा, नॉर्मली बैक्टीरिया बन जाएगा, बैक्टीरिया बनने के बाद हीट करो, मतलब डिसकंटिन्यूस हीटिंग करो, कंटिन्यूसली हीटिंग मत करो। स्टेरिलाइजेशन, द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय डिसकंटिन्यूस हीटिंग, कॉल्ड एज टिंडलाइजेशन। मतलब क्या, पहले हीट करो 5 मिनट के लिए, उसके बाद रुको,
रुको 10 मिनट रुको, और हीट करो। इस बीच वाली जो गैप में है ना, जो जो हम गैप छोड़ रहे हैं, पहले जो हीट किया 5 मिनट, बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरियल फेज में है वो डेथ हो गया। बाकी बीच में जो गैप छोड़ते हैं ना, डिसकंटिन्यूस हीटिंग, कंटिन्यूसली हीट नहीं करनी है, बीच में गैप छोड़नी है थोड़ा बहुत। जब गैप छोड़ दिया तो तब हीट नहीं मिल रहा, तो फेवरेबल कंडीशंस आ गया, तो वो स्पोर सोचता है भाई हीट चला गया, फिर ये जर्मिनेट होकर, स्पोर जर्मिनेट होकर बैक्टीरिया बनेगा। दूसरी हीट जब लगेगा इंटरवल के बाद, उस केस में ना वो भी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब स्पोर को भी खत्म कर सकते। कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन यू कैन डू विद द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय डिसकंटिन्यूस हीट। दैट मेथड इज कॉल्ड टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन इसीलिए रखा क्योंकि साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया, दैट इज जॉन टिंडल। पहले इन्होंने ये प्रोसेस, मेथड ऑफ डिसकंटिन्यूस हीटिंग की वजह से जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ये प्रोसेस इन्होंने दिया। उसके बाद उसको नाम दिया टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन। He found that discontinuous boiling for 1 minute on five successive occasion can make the infusion sterile. Infusion मतलब कोई भी जो infusion है उसको 5 successive occasions में 1 मिनट हीट करो। 1 मिनट हीट कर दिया, 5 मिनट छोड़ दो। 1 मिनट हीट कर दिया, 5 मिनट छोड़ दो। 1 मिनट हीट कर दिया, 5 मिनट छोड़ दो। 1 मिनट हीटिंग, 1 मिनट हीटिंग, 1 मिनट हीटिंग। ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज है, इसमें कुछ हीट नहीं मिलेगा। 1 मिनट हीटिंग, 1 मिनट हीटिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे डिसकंटिन्यूस हीटिंग की वजह से क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन स्टेरिलाइज। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसकंटिन्यूस हीटिंग प्रोसेस इज नोन एज टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन। पैस्चर एंड टिंडर, मैंने क्या बोला लास्टली, पैस्चर डिस्प्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस थ्योरी को। पैस्टर एंड टिंडल फाइनली क्लोज ही कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को कंप्लीटली डिस्प्रूव किसने किया, लास्टली पैस्चर एंड टिंडल। पहले पहले फर्स्ट पर्सन कौन है, फ्रांसिस्को रेडी फॉर द वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्प्रूव द फर्स्ट पर्सन टू डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ठीक है। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फर्मेंटेशन। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फर्मेंटेशन, इसमें रिसर्च कैसे हुआ, हु आर द साइंटिस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, लाटूर एंड थियोडोर स्क्वान एंड कुंजिंग independently showed, independently not collectively, they independently worked and they independently found that microbes are involved in a process called fermentation, which in which fermentation में क्या होगा, sugar will be converted into alcohol, and इसके लिए microbes involved है। microbes are converting sugars into alcohol and the process is known as fermentation। किसने डिस्कवर किया, तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। उसके बाद Louis Pasteur continued his work. Louis Pasteur continued his work and found that fermentation of fruits grains resulting in alcohol, fruits and grains। इन्होंने क्या स्टडी किया, लुइस पैस्चर उसके बाद फेर्मेंटेशन को स्टडी किया, एंड फेर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रेन्स की फेर्मेंटेशन होने के बाद अल्कोहल बन रहा है। इन्होंने ये डिस्कवर किया, अल्कोहल बन रहा है फेर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स की वजह से। एंड दिस अल्कोहल जो बन रहा है, दैट वाज due to the microbes, that was due to the microbes। एंड ये जो भी अल्कोहल बन रहा है, एंड द क्वालिटी ऑफ फेर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द फेर्मेंटेड प्रोडक्ट, फेर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या कौन सा है, अल्कोहल, एंड उसकी क्वालिटी डिपेंड करता है कौन सी जो माइक्रोब यूज कर रहा है। बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर माइक्रोब सेलेक्ट करने से उसकी क्वालिटी डिपेंड करता है। ठीक है, माइक्रोब के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स वाई इसका मतलब क्या है, जो फेर्मेंटेशन में हमें जो यूजफुल माइक्रोब है उसको रखना है, जो अनयूजफुल माइक्रोब है उसको किल करना है। ठीक है, क्या करना है, अब फेर्मेंटेशन सही होनी चाहिए। फेर्मेंटेशन हो तो रहा है जिसमें शुगर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। वो शुगर्स अगर फ्रूट्स में भी शुगर्स मिलता है, ग्रेन्स में भी शुगर्स मिलता है, एंड इन सब में भी फेर्मेंटेशन हो रहा है, एंड वो से अल्कोहल बन रहा है। एंड अल्कोहल सही बनना है तो जो फेर्मेंटेशन के लिए मेन जरूरी है वो माइक्रोब होनी है, जो अनयूजफुल माइक्रोब है फेर्मेंटेशन के लिए जो जरूरी नहीं है उसको किल करनी है। सिर्फ और सिर्फ फेर्मेंटेशन वाली माइक्रोब चाहिए हमें। ठीक है, उसके लिए इन्होंने एक पैस्चराइजेशन मेथड लाया। क्या है, द अदर अनफेवरेबल माइक्रोब जो फर्मेंटेशन के लिए जरूरत नहीं है उसको किल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक टेक्निक लाया, दैट इज पैस्चराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग द फ्रूट जूस। अगर फ्रूट में फर्मेंटेशन की स्टडी कर रहे हैं, हीट द फ्रूट जूस फॉर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। उस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैस्चराइजेशन बोलते हैं। इस पैस्चराइजेशन क्या करता है, अनफेवरेबल माइक्रोब्स को किल करता है, एंड अनफेवरेबल माइक्रोब्स को किल करता है। जो
fermentation के लिए जरूरी नहीं है, उसी को kill करता है. And this short heating process for just 30 minutes, short heating process kills the pathogenic and spoilage microbes and does not sterilize the liquids completely. इसका मतलब क्या? पैस्चराइजेशन सिर्फ और सिर्फ पैथोजेनिक एंड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही खत्म करता है, एंड फेर्मेंटेशन के लिए एंड बढ़िया जो यूजफुल माइक्रोब्स है फेर्मेंटेशन के लिए उसको कुछ नहीं करता, इसीलिए कंप्लीटली स्टेरलाइज नहीं करता. कंप्लीटली स्टेराइल मतलब यूजफुल माइक्रोब्स भी नहीं होनी चाहिए. कंप्लीटली स्टेराइल मतलब कोई भी माइक्रोब नहीं होनी चाहिए. पैस्चराइजेशन में कंप्लीट स्टेरिलिटी नहीं आता. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नोट. पैस्चराइजेशन कभी भी 100% स्टेरिलिटी नहीं लाता. इट कांट स्टेरिलाइज द लिक्विड कंप्लीटली. कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन पैस्चराइजेशन में नहीं होता है. स्टेटमेंट में गलत मत करना कि कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन करता है तो गलत है. पैस्चराइजेशन कभी भी कंप्लीटली नहीं करता. it will avoid only unfavorable microbes. It will avoid only unfavorable microbes. It will kill only unfavorable microbes. ठीक है. That's about pasteurization 62.8 degrees centigrade for 30 minutes. After that, during his studies on the butyric fermentation, Pasteur discovered किया existing forms of the life है ना. Pasteur ने एक एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ को डिस्कवर किया इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में, ऑक्सीजन की ब्यूटेरिक फर्मेंटेशन की टाइम में इन्होंने कुछ माइक्रोब्स को डिस्कवर किया जो विदाउट ऑक्सीजन भी दे आर सर्वाइविंग. उसके बाद इनको ये प्रूव हो गया भाई कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर जिसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन भी वो सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है. दैट्स हाउ ही डिस्कवर्ड दैट कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है. देन ही इंट्रोड्यूस द टू टर्म्स एरोबिक एनारोबिक. जिसको जरूरत है वो एरोबिक है, मतलब जो ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं हो पाता, दे आर एरोबिक. एंड जो बिना ऑक्सीजन भी लिविंग कर सकते हैं, दे आर एनारोबिक. द टर्म एरोबिक एनारोबिक किसने इंट्रोड्यूस किया? लुइस पैस्चर ने इंट्रोड्यूस किया. ही मतलब कौन है? लुइस पैस्चर इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एरोबिक एंड एनारोबिक एंड ही designated life in the presence of in the absence of oxygen. प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में लिव कर सकते हैं, एनारोबिक मतलब. मेन पॉइंट ये है कि टर्म एरोबिक एंड एनारोबिक किसने इंट्रोड्यूस किया? लुइस पैस्चर ने इंट्रोड्यूस किया. पैस्चर डिस्क्राइब फर्मेंटेशन इज लाइफ विदाउट एयर. पैस्चर ने फर्मेंटेशन क्या दिया? फर्मेंटेशन इज नथिंग बट इट इज लाइफ विदाउट एयर. फर्मेंटेशन इज लाइफ विदाउट एयर किसने दिया स्टेटमेंट दैट फर्मेंटेशन इज लाइफ विदाउट एयर स्टेटमेंट दिया पैस्चर ने. द टर्म एरोबिक एंड एनारोबिक किसने दिया? पैस्चर ने. एंड कंटिन्यू मोस्ट सक्सेसफुली स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को क्लोज किसने किया, रिजेक्ट किसने किया? लुइस पैस्चर ने. एंड एक्सपेरिमेंट की कौन सी एक्सपेरिमेंट था वो? गूसनेक एक्सपेरिमेंट था. ठीक है. Some strictly anaerobic microorganisms such as butyric acid bacteria strictly anaerobic है and dependent on the fermentive mechanisms to obtain energy. fermentation के थ्रू जो एनर्जी आता है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंट था. एंड इस यहाँ देखना, इन्होंने एरोब्स में भी ये दो चीज नोटिस किया. कुछ एक होता है नॉर्मली एरोब्स एनारोब्स, कुछ होता है ना फैकल्टेटिवली एनारोब. व्हाट इज फैकल्टेटिवली एनारोब? फैकल्टेटिवली एनारोब मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब एरोब है. फैकल्टेटिवली एनारोब मतलब ये मोस्टली एरोब है. बाकी जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, जब ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तब एनारोब होता है. फैकल्टेटिवली मतलब ओनली फॉर द फ्यू टाइम इट इज एनारोब. ओनली फॉर द फ्यू टाइम फैकल्टेटिवली एनारोब, फॉर द फ्यू टाइम इट इज एनारोब. इसका मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब एरोब है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तब एनारोब है. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज ईस्ट. ईस्ट देखना, ईस्ट जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब एरोबिक है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तब एनारोबिक है. एंड फेर्मेंटेशन इज द प्रोसेस विद लाइफ विदाउट ऑक्सीजन, लाइफ विदाउट ऑक्सीजन. एंड यहाँ क्या होगा? जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ एनारोबिक नेचर होगा, वहाँ फर्मेंटेशन होगा. शुगर विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड CO2. एंड व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिर्फ शुगर कन्वर्ट होगा CO2 में. शुगर कन्वर्ट होगा सिर्फ CO2 में. एंड ईस्ट ईस्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जी रहा है, एंड ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो एनारोबिक भी जी रहा है. दैट्स व्हाई ईस्ट इज द फैकल्टेटिव एनारोब.
दैट्स वाई ईस्ट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब। दिस अबो प्रोसेस जो ईस्ट फैकल्टेटिव एनारोब है, ये सारे प्रोसेस किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? एरोबिक टर्म एरोबिक टर्म एरोब टर्म एनारोब किसने दिया? पैस्चर ने दिया। फैकल्टेटिव एनारोब कॉन्सेप्ट किसने दिया? पैस्चर ने दिया। ईस्ट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब किसने बताया? पैस्चर ने बताया। फेर्मेंटेशन इज अ लेस एफिशिएंट एनर्जी, ये एक चीज याद रखना, लेस एफिशिएंट एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फेर्मेंटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन लाइक फेर्मेंटेशन की एफिशिएंसी कम होता है, एफिशिएंसी हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन की ज्यादा होता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें इनकम्प्लीट होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, कुछ कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसमें इनकम्प्लीट होता है, कुछ एनर्जी रह जाता है, दैट इज द रीजन। यहाँ स्टेटमेंट वन, व्हाट इज द स्टेटमेंट वन? स्टेटमेंट वन इज fermentation is a less efficient energy yielding process than aerobic respiration। या इसमें स्टेटमेंट ये आ सकता है कि anaerobic respiration is less efficient energy yielding process than aerobic respiration, या fermentation is a less energy yielding process than aerobic। रीजन क्या है? बिकॉज रीजन ये है, statement 2 is the reason, correct explanations। What is the correct explanation? Because the part of energy incomplete hota hai, part of energy present in the substance degraded is still present in the organic end products। part of energy और भी रह जाता है उसमें, part of energy organic products में, end products में और भी रह जाता है, मतलब completely oxidized नहीं हुआ, कुछ energy रह गया organic end products में। That's why we used to call anaerobic respiration as an incomplete oxidation, incomplete oxidation। At the same time, Frederick Kohn demonstrated that certain bacteria produce spores which are heat resistant। कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करता है एंड वो हीट रेसिस्टेंट होता है। किसने बताया? फ्रेडरिक कॉर्न। फ्रेडरिक कॉर्न किसने बताया? कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करता है एंड वो स्पोर्स हीट रेसिस्टेंस होता है, हीट से वो स्पोर को किल करना मुश्किल है। ये किसने बताया? फ्रेडरिक कॉर्न ने। हम देखते हैं अब जम थियरी ऑफ डिसीजेस। जम थियरी ऑफ डिसीजेस में क्या क्या हिस्ट्री है, डिसीज की हिस्ट्री कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, वैक्सीन में कौन इन्वॉल्व है, एवरीथिंग डिटेयली देखते हैं, ठीक है। लिविंग एजेंट्स आर द कॉज ऑफ डिसीज। डिसीज की कॉज है वो लिविंग एजेंट्स ही डिसीज कॉज करता है। किसने बताया फॉर द फर्स्ट टाइम? वॉन प्लेंसिस। वॉन प्लेंसिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब दैट लिविंग एजेंट्स आर द कॉज ऑफ डिसीज। उसके बाद फंगस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज। फंगस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, फंगस डिसीज के कारण है। सिल्कवॉर्म के अंदर जो डिसीज की कारण है फंगस है, वो पहले फॉर द फर्स्ट टाइम किसने रिकॉग्नाइज किया? बेसी। बेसी साइंटिस्ट का नाम है बेसी। बेसी रिकॉग्नाइज दैट फंगस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज इन सिल्कवॉर्म। उसके बाद बेरकीली, बेरकीली प्रूव दैट लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो आयरलैंड में आया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो आयरलैंड में आया उसको आयरिश फेमेन बोलते हैं। कौन सी ईयर में आया? 1845 में आया, ठीक है। 1845 में जो आयरिश फेमेन आया, आयरिश फेमेन, आयरिश फेमेन आया, किसकी वजह से आया? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है जो फंगई है वो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फंगई। आयरलैंड में जो फेमेन आया, आयरिश फेमेन बोलते हैं 1845 में, उस फेमेन में जो डिसीज की कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज फंगई, दैट इज फंगई। किसने बोला फर्स्ट टाइम? किसने प्रूव किया कि फंगई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोटैटो लीफ ब्लाइट, दैट लेड टू द आयरिश फेमेन? किसने? बेरकीली, साइंटिस्ट बेरकीली। स्कोनलिन, उसके बाद स्कोनलिन showed that certain skin diseases in man was caused by fungal infections। स्कोनलिन स्कोनलिन ने क्या प्रूव किया, क्या शो किया कि ह्यूमन के अंदर जो स्किन इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली फंगल की वजह से होता है, ठीक है। दैट वाज प्रूव्ड बाय, showed by स्कोनलिन। during the period of pasture Pasteur also worked on the silkworm disease. Pasteur also worked on the silkworm disease। He isolated a parasite, एक disease है febrin, it is caused by a protozoan। Febrin is a disease in the silkworm, febrin is a disease in a silkworm that is caused by, febrin is a disease in the silkworm that is caused by protozoan। पहले लोग सोचता था कि वो बैक्टीरिया की वजह से, बाकी इट इज नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया। फेब्रिन इज
Febrin is a disease caused by protozoan. Febrin is a disease caused by protozoan in silkworm. He also showed that silkworm farmers could eliminate this disease by using only disease-free caterpillars या disease-free breeding stock. डिसीज फ्री ब्रीडिंग स्टॉक, इसीलिए कभी सिल्क फॉर्म की जो सेरिकल्चर में क्या होता है, डिसीज फ्री लेइंग्स होता है ना, डिसीज फ्री लेइंग्स, डीएफएल बोलते हैं, डीएफएल डिसीज फ्री लेइंग्स। क्योंकि जो एक्स मिलता है जो सेरिकल्चर में पहले डीएफएल, वन डीएफएल कंटेंट्स 400 एक्स, सॉरी 400 एक्स जो सेरिकल्चर में स्टार्टिंगली डीएफएल्स लाता है, डिसीज फ्री लेइंग्स, है ना। डिसीज फ्री लेइंग्स इसीलिए यूज कर रहे हैं, पहले पेब्रिन डिसीज आया करता था प्रोटोजोन की वजह से, एंड वो डिसीज फ्री लेइंग्स, डिसीज फ्री लार्वा, डिसीज फ्री कैटरपिलर यूज करनी है, तभी सिल्कवर्म्स अफेक्ट नहीं होगा पेब्रिन डिसीज से। पेब्रिन डिसीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोवन, नॉट बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन। किसने प्रूव कर दिया? पैस्चर ने। पेब्रिन डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन, नॉट बाय बैक्टीरिया प्रूव किया पैस्चर ने। उसके बाद ही ऑल्सो वर्कड ऑन द शीप के ऊपर वर्क किया, एंड ही डिस्कवर्ड ए डिसीज एंथ्रैक्स डिसीज इन कैटिल एंड शीप। एंथ्रैक्स डिसीज इन कैटिल एंड शीप ही इन्होंने आइसोलेट किया। एंथ्रैक्स डिसीज की जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको इन्होंने आइसोलेट किया। डिसीज्ड एनिमल्स, डिसीज्ड कैटिल, एंथ्रैक्स डिसीज जो शीप एंड कैटिल में आया करता था, उसमें इन्होंने कॉजल ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया। बाकी उसके बारे में उसके बाद रॉबर्ट कोच ने प्रॉपरली प्रूव कर दिया कि दिस इज कॉज्ड बाय एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रासिस, इट इज ए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। किसने प्रूव? एंथ्रैक्स डिसीज को फर्स्ट टाइम स्टडी किया पैस्टर ने एंथ्रैक्स डिसीज को स्टडी किया कैटल एंड शीप में। इन्होंने आइसोलेट भी किया बाकी, आइसोलेट किया कॉजल ऑर्गेनिज्म को, आइसोलेट किया। बाकी इसको जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बेसिलस एंथ्रेसिस है, किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। एंड वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, वो किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच रॉबर्ट कोच कंक्लूडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। इस जो एंथ्रैक्स की जो स्टडी में है ना, एंथ्रैक्स की जो स्टडी कर रहे थे उसकी स्टडी एंड फाइंडिंग्स से, एंथ्रैक्स की जो डिसीज की स्टडी एंड फाइंडिंग्स से इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दिया। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दिया बाय स्टडीइंग ऑन द एंथ्रैक्स की डिसीज जो एनिमल्स में, शीप में आ रहा है, कैटल एंड शीप में आ रहा है, उसको स्टडी करने के बाद इन्होंने कोस्ट पोस्टुलेट्स दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज एंड कोस्ट पोस्टुलेट्स दिया। ही इस एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व, इन्होंने क्या किया? पहले ही डिस्कवर्ड द टिपिकल बेसिलाई कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेसिस स्क्वेरिशेंट्स, मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया स्क्वेरिशेंट्स, स्क्वेरिशेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द कैटल। इन्फेक्टेड कैटल की ब्लड में इन्होंने बेसिलस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया। उसकी एंड्स कैसे? स्क्वेरिश है। क्या बोलते हैं उसको? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। एग्जैक्ट नेम क्या है? एंथ्रासिस बेसिलस एंथ्रासिस। ही डिस्कवर्ड द टिपिकल बेसिली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने इन्फेक्टेड कैटिल से ब्लड से इन्होंने आइसोलेट तो किया, आइसोलेट करने के बाद इसको इन्होंने प्योर कल्चर में ग्रो किया, ठीक है। ही ग्रू दिस बैक्टीरिया इन कल्चर्स इन लैबोरेटरी। प्योर कल्चर में ग्रो किया। ग्रो करके इन्होंने ये देखा, माइक्रोस्कोप के अंडर इन्होंने ये देखा इसमें बेसिलस अकेला है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है, ताकि इनको क्लैरिटी हो जाए कि बेसिलस की वजह से ही एंथ्रासिस हो रहा है, एंथ्रैक्स हो रहा है। एग्जामिन किया माइक्रोस्कोपिकली टू बी श्योर दैट ही हैड ओनली वन काइंड प्रेजेंट मतलब एक ही बैक्टीरिया है, कोई और बैक्टीरिया तो नहीं है। सिर्फ जब दो बैक्टीरिया होता तो उसमें ब्लड में कंफ्यूजन हो जाता था। इन्होंने इसको जो आइसोलेट किया, उसको प्योर कल्चर में लैबोरेटरी में जो आर्टिफिशियली इन्होंने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखा, कंफर्म किया कि सिर्फ और सिर्फ बेसिलस है। उसको जो प्योर कल्चर में इन्होंने ग्रो किया, वो दोबारा ये एक हेल्दी कैटल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एंड देन इन्फेक्टेड देम इनटू अदर एनिमल्स, एंड देन इन्फेक्टेड जो प्योर कल्चर इन्होंने आइसोलेट किया, सिर्फ और सिर्फ बेसिलस है, इनको पता चल गया लैब में जो कल्चर है, उसको इन्फेक्ट किया जो अनदर एनिमल्स जो हेल्दी है उसके एनिमल के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करके देखा। इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें सिम्टम्स आया एंथ्रैक्स का। क्योंकि इन्होंने ये किया कि एक हेल्दी कैटल में हेल्दी कैटल में हेल्दी कैटल के अंदर इन्होंने
इंट्रोड्यूस किया, इन्फेस्ट किया। इन्फेस्ट करने के बाद ये हेल्दी कैटल में सिम्टम्स दिख गया एंथ्रैक्स का। इससे इनको ये कंफर्म हो गया कि भाई बेसिलस ही कारण है। बेसिलस इंट्रोड्यूस करते ही इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, एंथ्रैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब बेसिलस एंथ्रासिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रैक्स डिसीज। ठीक है, एंथ्रैक्स डिसीज। इस प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, वही कोस्ट पोस्टलेट है। अब जो स्टोरी आपने सुना, अब जो स्टोरी आप कीनली सुना, वही कोस्ट पोस्टलेट है। इन्होंने क्या किया, पहले किया इन्होंने आइसोलेट किया। आइसोलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आइसोलेट किया इन्होंने, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है आइसोलेट किया, जो डिसीज कंडीशन में, मतलब इन्फेस्टेड कैटिल में कि ब्लड में इनको बेसिलस मिल गया, इन्होंने आइसोलेट किया। उसके बाद इन्होंने प्योर कल्चर में ग्रो किया। ही वॉज एबल टू ग्रो ए प्योर कल्चर ग्रो किया। उसके बाद इन्होंने हेल्दी कैटिल में इन्फेस्टेशन किया। हेल्थी कैटिल में सेम जो प्योर कल्चर में ग्रो करने के बाद इन्होंने हेल्थी कैटिल में इन्फेस्टेशन किया। हेल्थी कैटिल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद वहाँ बेसिलस मल्टीप्लाई हो गया, रिप्रोड्यूस होके हेल्दी कैटिल को अटैक किया। मतलब वो हेल्दी कैटिल में रिप्रोड्यूस हुआ, होने के बाद सिम्टम्स भी दिखाया। यही कोस्ट पोस्टुलेट्स है। ठीक है, अब देखते कोस्ट पोस्टुलेट जो स्टोरी है। द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा है, दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट पोस्टुलेट। व्हाट इज कोस्ट पोस्टुलेट, देखना स्टोरी में जो हुआ वही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन द एवरी केस ऑफ द डिसीज। इन्होंने जो इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज की जो कोस्ट पोस्टुलेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिसीज। इन्होंने पहले कहाँ से आइसोलेट किया, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म को इन्होंने आइसोलेट किया ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड कैटिल से। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिसीज हॉस्ट एंड ग्रो इन द प्योर कल्चर। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, पहले तो जहाँ जहाँ भी डिसीज है जहाँ जहाँ डिसीज है वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए बैक्टीरिया। जितने भी डिसीज केसेस है, हर केस में बैक्टीरिया प्रेजेंट होनी चाहिए, माइक्रोब प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड केस, जो भी बैक्टीरिया हम आइसोलेट करते हैं उसको प्योर कल्चर में ग्रो करना पॉसिबल होनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू ग्रो इट इन ए प्योर कल्चर। थर्ड थिंग, जब भी वो स्पेसिफिक डिसीज जो भी है, दैट शुड बी रिप्रोड्यूस्ड, मतलब वो स्पेसिफिक डिसीज दोबारा आनी चाहिए जब हम प्योर कल्चर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई हेल्दी हेल्दी कैटल के अंदर या हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जब डालते हैं, उसमें दोबारा वो डिसीज रिप्रोड्यूस होनी चाहिए, दोबारा वो डिसीज आनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक डिसीज शुड बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोक्यूलेटेड इनटू द हेल्दी ससेप्टेबल होस्ट। हेल्दी ससेप्टेबल होस्ट के अंदर जब वो माइक्रोबियल इनोक्यूबल आप डालते हैं, वो डिसीज दोबारा आनी चाहिए। जो पहले डिसीज्ड एनिमल से जो लिया, उसको प्योर कल्चर में ग्रो करनी चाहिए। एंड उसको जब हेल्दी होस्ट में डालते हैं, वो दोबारा जो इसमें भी डिसीज आनी चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ पोस्टुलेट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवरेबल। जो हेल्दी होस्ट में डालने के बाद उसमें डिसीज आता है, हेल्दी होस्ट में डालने के बाद उसमें डिसीज आता है, डिसीज आने के बाद इस डिसीज्ड जो एनिमल है, डिसीज्ड जो इंडिविजुअल है, उसमें से भी सेम बैक्टीरिया माइक्रोब रिकवरेबल होनी चाहिए। रिकवरेबल मतलब उससे भी जो एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल होनी चाहिए, उससे भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेम बैक्टीरिया या सेम माइक्रोब वी शुड बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड हॉस्ट से भी सेम माइक्रोब लेनी चाहिए, मतलब रिकवर करनी चाहिए। ठीक है। दीज आर द कोस्ट पोस्टुलेट्स। इंपॉर्टेंट ऑप्शन में पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोस्ट पोस्टुलेट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्ट पोस्टुलेट। He also demonstrated that biological specificity of he also demonstrated the biological specificity of disease agents. इन्होंने रॉबर्ट कोच ने क्या किया, बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी ऑफ डिसीज एजेंट्स को भी डेमोन्स्ट्रेट किया। मतलब कुछ डिजीजेस की जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है, सिर्फ और सिर्फ अब एंथ्रैक्स है जो कैटल में एंड शीप में भी इन्फेक्ट करता है, कुछ डिसीजेस ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ डिसीज इन्फेक्ट मंकीज को। ऐसे देयर इज अ बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी ऑफ द डिसीज एजेंट, दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट कोच। उसके बाद दिस लेड टू द उसके बाद जो भी पैस्चर ने किया, पैस्चर ने पहले क्या किया, पैस्चर पहले सिल्कवॉर्म के अंदर जो फेब्रिन डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन नॉट बाय बैक्टीरिया, उसके बाद इन्होंने एंथ्रैक्स को भी स्टडी किया, एंथ्रैक्स को स्टडी करके आइसोलेट किया। जब पैस्चर ने स्टडी किया एंथ्रैक्स को, आइसोलेट एंथ्रैक्स के अंदर जो डिसीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म है उन्होंने आइसोलेट किया, उसके बाद ही तो कोस्ट कोस्ट ने क्या किया, कोस्ट ने प्रॉपर प्रूव कर दिया कि जो आइसोलेट है
वो बेसिलस एंथ्रासिस है, ये सब लेट डिस्कवरीज हो गया, ठीक है। इसी की वजह से जो पास्चर एंड कोस्ट को क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा फेम मिला। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस बना पेरिस में एंड बर्लिन में। पेरिस में जो बना वो पास्चर के नाम पे था, एंड बर्लिन में जो बना वो कोस्ट के नाम पे था, ठीक है। लेड टू द क्रिएशन ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशन both in Paris and Berlin. Paris में for Pasteur on the name of Pasteur, in Paris on the name of Pasteur, in Berlin on the name of Robert Koch. पास्चर ग्रुप उसके बाद अब देखना पेरिस में इंस्टीट्यूशंस बना एंड बर्लिन में भी इंस्टीट्यूशन बना। पेरिस में इंस्टीट्यूशन है पास्चर ग्रुप देख रहे हैं, बर्लिन में इंस्टीट्यूशन है कोच ग्रुप देख रहे हैं। अब ये दोनों सेपरेट रिसर्च कर रहे हैं, दोनों एक ही रिसर्च नहीं कर रहे, दोनों सेपरेट रिसर्च कर रहे हैं। एंड वो सेपरेट रिसर्च पास्चर ग्रुप क्या किया, अब जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज तो कंफर्म हो गया, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज कोस्ट पॉस्टुलेट एवरीथिंग फाइनल हो गया। अब देखते पास्चर ग्रुप फोकस किया रिकवरी एंड इम्यूनिटी। डिसीज का तो पता चल गया है कि माइक्रोब्स की वजह से डिसीज आ रहा है, उससे रिकवरी कैसे कर सकते हैं, इम्यूनिटी कैसे ला सकते हैं। एक तो जिसमें डिसीज है उससे रिकवरी कैसे हो सकता है, एंड जो नॉन डिसीज है उसमें डिसीज आनी ही नहीं चाहिए, इम्यूनिटी कैसे ला सकते हैं। इस रिसर्च के ऊपर पास्चर ग्रुप स्टडी कर रहे थे। एंड कोस्ट ग्रुप स्टडी कर रहे थे एटियोलॉजी के ऊपर, एटियोलॉजी ऑफ मेजर इन्फेक्शियस डिसीजेस। एटियोलॉजी ऑफ मेजर इन्फेक्शियस, एटियोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म। एटियोलॉजी मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब बर्लिन में जो रिसर्च चल रहा था, बर्लिन में क्या रिसर्च चल रहा है, बर्लिन में रिसर्च चल रहा है। बाकी एंथ्रेक्स तो हो गया, बाकी कोई भी जो फैटल डिसीजेस है, कोई भी जो मेजर डिसीजेस है उसकी कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एटियोलॉजी के ऊपर स्टडीज हो रहे थे बर्लिन में। कोच ग्रुप उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। पास्चर ग्रुप क्या फोकस कर रहा है, रिकवरी, रिकवरी कैसे कर सकते हैं डिसीज आने के बाद, उसको क्यूर कैसे कर सकते हैं एंड इम्यूनिटी कैसे ला सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पास्चर ग्रुप फोकस कर रहे थे, ठीक है। एंड ये देखना प्योर कल्चर टेक्निक्स, प्योर कल्चर टेक्निक्स किसने, प्योर कल्चर मेथड्स, प्योर कल्चर टेक्निक वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्कार ब्रेफेल्ड। ऑस्कार ब्रेफेल्ड, प्योर कल्चर टेक्निक वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन बाय ऑस्कार ब्रेफेल्ड। इट इज अ प्योर कल्चर टेक्निक इज अ प्रैक्टिस ऑफ आइसोलेटिंग सिंगल सेल्स ऑफ फंगाई। मतलब इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक में भी फंगाई का प्योर कल्चर इन्होंने किया। प्रैक्टिस ऑफ ही इंट्रोड्यूस्ड ऑस्कार ब्रेफेल्ड introduced practice of isolating single cells of fungi and their culture on the solid medium, which was solid medium कैसे है जेलाटिन के एडिशन की वजह से आया। जेलाटिन क्या है, जेलाटिन इज अ प्रोटीन, जेलाटिन इज अ प्रोटीन हेल्पफुल इन सोलिडिफाइंग एजेंट है ये, सोलिडिफाइंग एजेंट, सोलिडिफाइंग एजेंट है। जेलाटिन इज अ प्रोटीन एंड सोलिडिफाइंग एजेंट है। ये क्या करता है, जेलाटिन कोई भी मीडियम के अंदर डालने के बाद वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। लिक्विड भी सॉलिड बन जाता है, ठीक है, सोलिडिफाइंग। सॉलिड मीडिया के ऊपर इन्होंने सिंगल सेल्स ऑफ फंगाई को ग्रो करके देखा। सिंगल सेल्स ऑफ फंगाई को ग्रो करके प्योर कल्चर टेक्निक को स्टार्ट किया। प्योर कल्चर टेक्निक किसने स्टार्ट किया, प्योर कल्चर टेक्निक स्टार्ट किया ऑस्कार ब्रेफेल्ड ने। प्योर कल्चर टेक्निक फॉर द फर्स्ट टाइम किसने प्रिपेयर किया, ऑस्कार ब्रेफेल्ड। किसका किया, फंजाई का किया, क्योंकि सॉलिड जो मीडिया है वो सुटेबल नहीं है। हिज मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरिया, हिज मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरिया। फर्स्ट प्योर कल्चर वो बना, वो फंजाई का बना। उसके बाद प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय जोसेफ लिस्टर। प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम किसने ऑब्टेन किया, जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर में कौन सी टेक्निक है, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक इन लिक्विड मीडिया, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक इन लिक्विड मीडिया, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक इन लिक्विड मीडिया। सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक किसने दिया, जोसेफ लिस्टर ने दिया। जोसेफ लिस्टर was given serial dilution technique through which he prepared the first pure culture technique of a first pure culture of bacteria, and bacteria name bacteria lactis. Bacteria lactis was isolated into pure culture। बैक्टीरिया लैक्टिस को आइसोलेट करके प्योर कल्चर में ग्रो करके फर्स्ट प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन्होंने डेवलप किया। फर्स्ट प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया किसने डेवलप किया, जोसेफ लिस्टर में। एंड द मेथड ही फॉलोड इज सीरियल डाइल्यूशन मेथड, सीरियल डाइल्यूशन मेथड। अलॉन्ग विद दिस जोसेफ लिस्टर डेवलप्ड द एंटीसेप्टिक मेथड ऑफ सर्जरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटीसेप्टिक मेथड ऑफ सर्जरी वाज डेवलप्ड बाय जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक मेथड ऑफ सर्जरी वाज डेवलप्ड बाय जोसेफ लिस्टर। कोस्ट डेवलप्ड कोस्ट डेवलप्ड प्योर कल्चर Koch developed pure culture technique for bacteria. Robert Koch also developed प्योर कल्चर टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया। बाकी जोसेफ लिस्टर जो प्योर कल्चर टेक्निक है उसकी टेक्निक है सीरियल डाइल्यूशन है। एंड कोच ने जो डेवलप किया इसकी टेक्निक है, एक स्ट्रिक प्लेट टेक्निक है, एक पोर प्लेट टेक्निक है। टू टेक्निक्स है जो बैक्टीरियल प्योर कल्चर टेक्निक में
एक स्ट्रीक प्लेट मेथड है, एक फोर प्लेट मेथड है, एक फोर प्लेट मेथड है। इसमें क्या करते थे, पहले देखना कोस्ट की एक्सपेरिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ इसमें। एट फर्स्ट कोस्ट एक्सपेरिमेंटेड स्टेराइल कट सरफेस ऑफ पोटैटो, पोटैटो को कट करके, पोटैटो के कट करके जो लॉन्ग पोटैटो है उसका कट करके जो स्टेराइल सरफेस है, जो स्टेराइल सरफेस है इसको स्टेरिलाइज करके उसकी स्टेराइल सरफेस के ऊपर इन्होंने प्योर कल्चर ग्रो करने के लिए सोचा, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए सोचा, पहले ट्राई किया। which he placed in the sterile covered glass of the dish and then inoculated with the bacteria। पोटैटो की जो कट सरफेस है उसको स्टेरलाइज करके इन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए सोचा। बाकी उसमें दिक्कत ये आया कि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से ना, ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से मोटाइल बैक्टीरिया स्प्रेड हुआ। मोटाइल बैक्टीरिया को स्टडी करना मुश्किल है क्योंकि इट विल बी कंटिन्यूसली मूविंग एंड मोटाइल बैक्टीरिया एंड द सबस्ट्रेट वाज ओपेक एंड पोटैटो की जो उसकी सरफेस की वजह से क्या हुआ, मॉइस्ट एंड उसकी सरफेस की वजह से इट इज ओपेक। ओपेक मतलब इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट क्लियर द मीडियम। जो भी इन्होंने पोटैटो जो में जो रिजर्व मटेरियल है जो इन्होंने ग्रोथ मीडिया की तरह यूज करके उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करके इन्होंने प्योर कल्चर बनाने के लिए सोचा, बाकी वो पॉसिबल नहीं हुआ स्टार्टिंग स्टेज में, इसीलिए क्योंकि उसमें मोटेल बैक्टीरिया बना एंड उसको देखना एंड रिसर्च करना इतना इजी नहीं है मोटेल बैक्टीरिया को। एंड सेकंड थिंग ओपेक, ओपेक वजह, ओपेकनेस की वजह से, ओपेकनेस मतलब इट इज नॉट क्लियर ऑन द पोटैटो सरफेस। रॉबर्ट कोश, रॉबर्ट कोश देख उसके बाद इन्होंने क्या किया, सॉलिड मीडिया से लिक्विड में आया। रॉबर्ट कोच थॉट दैट लिक्विड मीडिया को क्या किया उन्होंने, जेलाटिन ऐड किया, लिक्विड मीडिया यूज लिया, सॉलिड मीडिया जो पोटैटो वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर इन्होंने देन ही केम टू लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया में जेलाटिन ऐड किया, जेलाटिन ऐड करने के बाद वो सॉलिडिफिकेशन होगा, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो सॉलिड मीडिया बन गया, सॉलिड मीडिया बन गया। सॉलिड मीडिया बनने के बाद इन्होंने क्या किया, ये एक कॉटन स्वैब लिया, कॉटन स्वैब लिया जो सॉलिड मीडिया बना, ठीक है। जेलाटिन यूज करके जो लिक्विड मीडिया में बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, लिक्विड मीडिया में जो बैक्टीरिया ग्रोथ है उसमें जेलाटिन डाला, जेलाटिन डालने से क्या होता है, लिक्विड मीडिया सॉलिड मीडिया बन गया, सॉलिड मीडिया बन गया। इस सॉलिड मीडिया में इन्होंने क्या किया, एक कॉटन स्वैब लिया, कॉटन स्वैब लिया, कॉटन स्वैब लेके वो जो बैक्टीरियल सॉल्यूशन है, बैक्टीरियल सॉल्यूशन में कॉटन स्वैब को डिप करके इन्होंने स्ट्रीक किया, स्ट्रीक किया, इन्होंने स्ट्रीक किया ऑन द मीडियम, ग्रोथ मीडियम जो सोलिडिफाइड होने के बाद, सोलिडिफिकेशन ऑफ मीडिया होने के बाद कॉटन स्वैब से ही वाज streaked with the cotton swab, streaked with the cotton swab that is dipped in the bacterial suspension, बैक्टीरियल सस्पेंशन में डिप करके इन्होंने जो सोलिडिफिकेशन हो गया जो ग्रोथ मीडियम उसके ऊपर स्ट्रीक किया, ताकि स्ट्रीक करने से क्या होता है ना, बैक्टीरियल इन्फ्यूजन से इसमें स्पोर्स आ जाएगा एंड बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाएगा, यू कैन ग्रो द प्योर कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया। ही थॉट दैट, क्या किया इन्होंने, जेलाटिन डाल के लिक्विड जो मीडिया है उसमें जेलाटिन डाला, सोलिडिफिकेशन होगा, सोलिडिफिकेशन होने के बाद कॉटन स्वैब से इन्होंने स्प्रेड किया ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाएगा। कॉटन स्वैब पहले बैक्टीरियल बैक्टीरियल लिक्विड में इन्फ्यूजन में डिप करके इसमें उससे इसको स्प्रेड किया थ्रू स्ट्रीक मेथड, स्ट्रीक प्लेट मेथड। उसके बाद क्या हुआ, उसमें दिक्कत ये आया कि जेलाटिन प्रोटीन है, जेलाटिन प्रोटीन है एंड जेलाटिन की वजह से कुछ दिक्कत आया। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द जेलाटिन, although gelatinization was useful as a solid base, बाकी इससे डिसएडवांटेजेस ये है कि ये प्रोटीन है, जेलाटिन इज अ प्रोटीन एंड ये प्रोटीन ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल डाइजेशन, मतलब जो भी माइक्रोब है ना ये माइक्रोब विल डाइजेस्ट इट, मतलब माइक्रोब विल कंज्यूम ऑल द प्रोटीन, जेलाटिन को खत्म कर देगा व्हाइल ग्रोइंग, माइक्रोब विल कंज्यूम, दैट वाज अ प्रॉब्लम क्योंकि जेलाटिन जो यूज किया वो खत्म हो जाएगा जल्दी। एंड सेकेंड थिंग, जेलाटिन, जेलाटिन क्या है ना, जेलाटिन सॉलिड में तभी रहेगा जब 28 डिग्री से कम हो, 28 डिग्री से कम हो, 28 डिग्री से ज़्यादा गए ना, ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है ना, तब वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड बन जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है। मतलब अब वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, जेलाटिन मेल्ट हो जाता है, जेलाटिन मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, जो जेल है, जो सेमी सॉलिड है, जो जेल है, सॉलिड जो जेल लिक्विड बन जाता है अबो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मेल्ट हो जाता है। एंड बात ये है, हमें जो बैक्टीरियल की ग्रोथ करनी है उसके लिए टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इंक्यूबेशन, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोथ की ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 30-37 डिग्री। हमें बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखनी है। जब 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो जेलाटिन सॉलिडिफाइंग एजेंट की जिस तरह काम नहीं करता, जेलाटिन मेल्ट हो जाता है, दोबारा वो लिक्विड बन जाता है, तो फिर जेलाटिन से कोई काम नहीं चला। फिर वो दिक्कत हो रही है कि मतलब ये जेलाटिन जो बैक्टीरियल इंक्यूबेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिर उस केस में क्या किया, डॉक्टर हेसी की हेल्प लिया इन्होंने,
विद द हेल्प ऑफ हिज कोलिग डॉक्टर हेसी ने क्या किया, जेलाटिन को रिप्लेस किया, जेलाटिन को रिप्लेस किया किससे, अगर से, जेलाटिन को रिप्लेस किया अगार से। व्हाट इज अगार, अगार इज, जेलाटिन भी सोलिडिफाइंग एजेंट ही, अगार भी सोलिडिफाइंग एजेंट है। बाकी जेलाटिन प्रोटीन है जिससे दिक्कत आ रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, माइक्रोबियल कंजम्पशन। एंड ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। एंड उसमें एक और जेलाटिन में ये दिक्कत है, ग्रेटर देन 28 डिग्रीज जा रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, ग्रेटर देन 28 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट हो रहा है। बाकी इसको ये मेल्ट होने की 98 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मेल्ट होता है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मेल्ट होता है, ठीक है, 98 डिग्री इट विल मेल्ट। पॉलीसैकेराइड जो अगार है, अगार जो रिप्लेस किया, डॉक्टर हेसी ने एक सजेशन किया, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स में दिक्कत आ रहे हैं ना तेरे को, तो जस्ट स्वाइप इट विद द अगार, अगार यूज करो। अगार इज अ पॉलीसैकेराइड, अगार इज अ पॉलीसैकेराइड विच मेल्ट एट 98 डिग्रीज में जाने के बाद तब मेल्टिंग होगा, उस तब तक तो मेल्टिंग नहीं होगा। हमारी काम तो 40-50 डिग्रीज के बाद है ना, फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो टेम्परेचर बैक्टीरियल ग्रोथ टेम्परेचर में वो मेल्ट नहीं होगा, वो प्रॉब्लम भी क्लियर होगा, ठीक है। बाकी ये जो अगार है, जो पॉलीसैकेराइड, ये रेड algae से आइसोलेट किया, रेड algae जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, ऐसे जो रेड algae से जो अगार एक्सट्रैक्ट किया, ऐसे जो रेड algae से अगार आइसोलेट किया। फॉर दिस पॉजिटिव रीजन, एक तो ये पॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन नहीं है, दूसरा इसकी मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्रीज है, 98 डिग्रीज जब पहुंचेगा तब मेल्ट होगा। हमें तो 40-50 डिग्रीज में काम चलानी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए अगार यूज कर सकते हैं। दिस वॉज द मेजर पॉजिटिव रीजन टू रिप्लेस जेलाटिन विद द अगार। फॉर दिस वर द मेजर रीजन फॉर क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ जेलाटिन को क्विकली रिप्लेस किया एज ए हार्डनिंग एजेंट, एंड अगार को यूज करने लगेंगे। कोश कोश डेवलप्ड द, that's how using the by using the agar, Koch also developed the nutrient medium for growth of bacteria। फिर by using agar properly बैक्टीरिया के लिए एक न्यूट्रिएंट ग्रोथ मीडियम इन्होंने प्रॉपरली डेवलप किया, जिसमें प्योर कल्चर बना सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया की प्योर कल्चर बना सकते हैं। उसके बाद आता है बाइजर्निक एंड विनोग्रेड्स की डेवलप द टेक्निक ऑफ एनरिचमेंट कल्चर से ये फायदा है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकते हैं इसमें। बाई मॉडिफाइंग, इसमें क्या करते हैं, बाई मॉडिफाइंग द कंपोजिशन ऑफ द मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम तो बना तो लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम कोच ने बना लिया मुश्किल से, डॉक्टर हेसी की हेल्प लेके लास्ट में अगार ले आके बैक्टीरिया के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम तो बना तो लिया। बाकी इन्होंने ये विनोग्रेड्स की, बाइजर्निक एंड विनोग्रेड्स की क्या किया, एक एनरिचमेंट कल्चर लाया जिसमें स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो हो सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब ग्रुप मिक्सड, अगर मिक्सड पॉपुलेशन है, हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, उसमें से हमें जो जरूरत है उसी को ग्रो करनी है हमें मीडिया में, उसके लिए जो स्पेसिफिक कल्चर लाया, उसमें क्या करते हैं ना, बाय मॉडिफाइंग द कंपोजिशन ऑफ द मीडिया, मीडिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन है वो चेंज करके यू कैन, इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द मिक्सड पॉपुलेशन में स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, एंड यू कैन specifically separate and isolate, and you can grow the specific organism with the help of enrichment culture technique किसने दिया, बाइजरिंग एंड विनोग्रेड्स की। उसके बाद आता है फ्रैंकोइस अपर्ट एक टेक्निक दिया, हाईली पेरिशेबल फूड स्टफ होता है, पेरिशेबल मतलब जल्दी जो खराब होने वाली फूड स्टफ है, उसको प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने एक टेक्निक दिया, दैट इज अपर्टाइजेशन इज अ प्रिंसिपल ऑफ कैनिंग, जो भी पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स होता है उसको एक एयर टाइट कैन में रखो, एयर टाइट कैन में रखो, और उसको हीट करो, एयर टाइट कैन में रखने के बाद सील करो। फूड जो भी है पेरिशेबल, जो जल्दी खराब हो जाता है, उसको इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बाय फॉलोइंग दैट। फिर पहले एंक्लोज देम इन एन एयर टाइट चैम्बर्स, एयर टाइट कंटेनर्स में डालो उसको, एयर टाइट कंटेनर्स में डालने के बाद उसको हीट करो, हीटिंग द containers, and this process is known as appertization, मतलब keeping the perishable foods in the airtight containers and heating them for preserving. This process is known as appertization. Appertization is the principle of canning. Statement 1, appertization is the principle of canning, है ना? And appertization was given by Francois Appert। एंड ये सेम स्टोरी है जो स्क्रोडर एंड वैंडस है, जो कॉटन प्लग्स यूज किया एंड फिल्टर किया एयर को,
जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। जो कॉटन प्लगिंग टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन प्लगिंग टेक्निक यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, किसने ये दिया? वो कॉटन प्लगिंग टेक्निक, स्क्रोडर एंड वैंडस। एंड टिंडलाइजेशन जो बोलता है, टिंडलाइजेशन जो हमने डिस्कस किया, जॉन टिंडल ने आइडेंटिफाई किया, जो स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन विद द डिसकंटिन्यूस हीटिंग, जो हमने स्टडी किया 1 मिनट के लिए हीट करके, 5 मिनट्स गैप दे के, फिर 5 इंटरवल्स में जब हीट करते तो फिर कंप्लीटली स्टेराइल इन्फ्यूजन मिलेगा। रीजन ये है कि जॉन टिंडल की अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के 2 फेजेस होता है ना, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एक थर्मोलायबल, एक थर्मो रेसिस्टेंट देखना, थर्मो रेसिस्टेंट मतलब क्या? हीट रेसिस्टेंट को क्या स्टेज कौन सा है बैक्टीरिया के अंदर? एंडोस्पोर है। थर्मोलायबल मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव वाली कौन सा है? वेजिटेटिव स्टेज पहले किल हो जाएगा, एंड जो बीच में गैप आएगा, जो एंडोस्पोर्स है वो जर्मिनेट होके जो वेजिटेटिव स्टेज में आ जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके 5 इंटरवल में कोई भी एंडोस्पोर बचता नहीं है, कोई भी जो रेस्टिंग सुपोर एंडोस्पोर बचता नहीं है, सारे के सारे एंडोस्पोर्स एंड सारे किल हो जाएगा एंड स्टेराइल इन्फ्यूजन आ जाएगा। दिस इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड इसमें थोड़ी पार्ट और रह गया, नेक्स्ट वीडियो में विल कवर द लेफ्ट ओवर हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है।